So in last class, what we studied, we discussed about question paper of 2017. So we already completed so many questions in that, but today we are going to understand about the what are the various scope. I guess that is also completed. Scope of marketing is completed, right, Toshi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Scope of marketing is completed. What are the scope of marketing? Like how service marketing के क्या-क्या scope है? So the first point is creating awareness. या awareness create करने के लिए that is helpful. Boost sale because obviously that is add on with the product as well. Like services add on with the product. It increase the value and quality of the product as well as it is helpful for increasing the revenue. The second one is raise the standard of living, like because of the service sector, the boosting phase of service sector, so many employment opportunities generated and so many people are also get employment in service sector. So standard of living is increased when your income is increased. So service sector is responsible for increasing the income as well. Yeah, we can say that it is helpful for that. Second one is, fourth one is providing employment. We all know that the service sector, it's around, that is contributing around more than 60% in gross domestic product. So in that case, definitely it is also increasing the employment facilities. Next one is sources of new ideas. Basis ये शायद I think दो ये points नहीं लिखवाया था मैंने, इनको छोड़ के last में लिखवाया था मैंने, helps in economic development. Definitely it is helpful for economic development. तो ये कुछ स्कोप थे. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. That what are the different strategies of service marketing? Please write down the answer of this. What is the meaning of strategy? Strategy is related with the planning, which whatever we are doing in the future, कह सकते हैं, तरीका, ways, method, all these are the part of the strategy. So how we can perform the service marketing? What are the various ways for that? Please write the answer of this. Answer लिखिए इसका. पहला स्ट्रैटेजी लिखिए, हाउ वी कैन परफॉर्म द सर्विसेज इन द मार्केट. मार्केट में कैसे सर्विस को परफॉर्म करना है, क्या तरीका होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए. ठीक है, तो पहला लिखिए मार्केट रिसर्च. लाइक इफ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सर्विस इन द मार्केट, बिफोर दैट वी हैव टू इंडल्ज इन मार्केट रिसर्च प्रोसेस. यानी मार्केट रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है, बिकॉज एनी हाउ वी हैव टू डील विद द कस्टमर्स. कस्टमर्स के साथ डील करना है. What is their taste, what kind of product they want, what kind of service they literally expect. All these questions are solved by market research. So research जो है आजकल के टाइम पे मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. Why? The reason is that so many competitors are present, so different kind of customers are present, and taste preferences and अवेलेबिलिटी जो है सर्विसेज का, प्रोडक्ट का, बहुत ज्यादा आजकल हो गया है इंडिया में. ऐसी सिचुएशन में इफ यू वांट टू प्रोवाइड समथिंग डिफरेंट इन द मार्केट, in that case before implementing or introducing any kind of service, we have to do MR, market research. Scientific studies के through we have to understand, we have to basically analyze the market, valuable baseline बनाना. मार्केट रिसर्च हमें क्या बताता है? दे कैन हेल्पफुल फॉर मेकिंग, मतलब हमें हेल्प किस चीज में हेल्प करता है? फॉर अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स बेटर, टू अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस. तो फर्स्ट पॉइंट इज, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट रिसर्च का? ऑब्वियसली दैट इज हेल्पफुल फॉर basically increasing the revenue, income and understanding the consumer better. So we can say that the market research is the first strategy which is adopted by the service provider. ठीक है, सबसे पहला ये एक स्ट्रैटेजी हो सकता है. तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? स्ट्रैटेजी इसमें लिखना चाहते हो, या दिस इज साइंटिफिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एनालाइजिंग द मार्केट. हाउ वी कैन इवैल्यूएट द मार्केट, हाउ वी can compare the company with the another companies. Like these kinds of things are used in the market research. Like the different type of research methods are there, qualitative, quantitative. Like for anticipating the sales or something, we can do the quantitative experiment we can use. But in service now, it is very much difficult to analyze the demand before providing the product. It is very much difficult before providing the service. Sorry, we cannot able to analyze or anticipate the sales. But the market research is helpful for understanding the consumer behavior.
The second one is niche strategy. Niche, NICHE, niche strategy. niche marketing करवाया था ना तुम लोगों को मैंने टारगेट मार्केट में, याद आया? टारगेट मार्केट में करवाया था ना मैंने, 4 टाइप के मार्केट बताया था आपको, 4 पैटर्न था, तो उसमें से एक नीश मार्केटिंग भी था. सो यहाँ पर नीश स्ट्रैटेजी जो है दैट इज बेसिकली अडॉप्टेड बाय द सर्विस सेक्टर या सर्विस प्रोवाइडर. द क्वेश्चन इज व्हाई, because if we are going to provide the service in all the sectors, we are not sure that we are able to successful in the market or not. हमें इतना तो पता नहीं है. तो सबसे पहले हमें कुछ टारगेट ग्रुप पे या कुछ ही सेगमेंट में वो सर्विस को प्रोवाइड करना चाहिए बिफोर एक्सपैंडिंग योर सेक्टर, बिफोर एक्सपैंडिंग योर ब्रांच. एक्सपेंशन क्राइटेरिया में आप तभी जाइए जब आपको लॉन्ग टर्म से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है. बट अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है और आप स्टार्टिंग में एक्सेसिव कैपिटल और रिसोर्स को यूज कीजिएगा एक्सपेंशन के लिए, तो आगे चल के देयर इज पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि आपको लॉस देखना पड़े, है ना. So if you are introducing any kind of service with product or without product, first you need to basically use the niche strategy or niche targeting and specialization. यहाँ पर रिसर्च ने फाइंड आउट किया है कि जो नीश मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, ज्यादातर सक्सेसफुल होता है. यहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलरली हमें सब पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ जैसे जो सर्विस में हम स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे मान लीजिए कि वन टीचर, इफ यू वांट टू स्टार्ट देयर कोचिंग सेंटर, ही और शी इज स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग ओनली. सो फर्स्ट दे हैव टू फोकस ऑन टीचिंग, आफ्टर दैट दे कैन ओपन अ स्मॉल इंस्टीट्यूट, राइट. लेकिन अगर वो ये कोशिश करेंगे कि हम बहुत बड़ा सा कॉलेज ओपन कर ले स्टार्टिंग में, दैट इज नॉट द बेनिफिशियल वन. So before doing something big, first you need to focus on your specialization and on some customer or people. ठीक है. So we have to use the niche strategy. We have to select some particular segment according to the potential customers and according to the our resources and specialization. Clear हो गया second point भी. Third one, high performance website. See, today the whole country, yeah, whole world is dependent upon technology and internet. Without technology or internet, I think it is very much difficult for today's youth to survive even. So in that case, the utilization of internet is in the positive way as well as in the negative way. That is true, but still, if we are talking about the service sector, the high performance website is something, if you are going to offer any kind of service, you have to give information about this to so many people, to so many consumers. How you can use this, how you can go to how you are going to spread this message among so many consumers. So either you can use the social media, either you can open your own official website, खुद का बना लीजिए, ठीक है. So we can say that in the service marketplace nowadays, like जैसे for example, अगर आज देखो कोविड के टाइम पे एडमिशंस भी ऑनलाइन हो रहे हैं कॉलेज में, स्कूल्स में. इवन मैंने बताया था कंसल्टेंसी भी जो डॉक्टर्स है ऑनलाइन दे रहे हैं थ्रू सो मेनी एप्स. तो वी कैन से लाइक इन द प्रोफेशनल सर्विस मार्केटप्लेस, our company, your company's website will be one of the most important asset. यानी कि आपके लिए बहुत important ये asset होगा जब आपका कोई कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है तो, ठीक है. एक डिजिटल बिलबोर्ड और ये सब चीजें जो है वो तो ठीक है, इसके अलावा हमें आज के टाइम में जो कंज्यूमर्स का डिमांड है या फिर कंज्यूमर ज्यादातर टाइम जहां स्पेंड करते हैं उसको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर कोई पर्सन, आजकल द पीपल आर मोर रेशनल, लाइक रेशनल इज समथिंग लाइक द पीपल आर वेरी मच प्रूडेंट, समझदार हो गए. अगर उनको कहीं भी कोई भी सर्विस लेना होता है तो दे फर्स्ट सर्च अबाउट इट, है ना. पहले वो सर्च करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं. तो इसके लिए आपके पास एक गुड वेबसाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना, साथ साथ फिजिकल प्रेजेंस के साथ ऑनलाइन प्रेजेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इस तरीके से लोगों को आपकी कंपनी, आपके सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगा और एक बेटर आउटलुक भी रेडी होगा आपकी बेसिकली कंपनी के लिए. आपकी ब्रांड इक्विटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी कि ये रजिस्टर्ड है एंड दैट इज आल्सो रिटन इन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, ये रजिस्टर्ड कंपनी. सो वी कैन से दिस कि लाइक देयर शुड बी द हाई परफॉर्मेंस वेबसाइट और साथ साथ में वहां पर हेल्प के लिए हेल्पिंग बॉक्स और ये जो चीजें प्रेजेंट होती है
वहां पॉपअप बॉक्स एक प्रेजेंट होता है, हाउ वी कैन हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, समथिंग लाइक दिस, दैट शुड बी देयर, लाइक जिसमें पॉजिटिवली मतलब एट द टाइम हमें तुरंत तुरंत से रिप्लाई भी मिले अगर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, आपका रजिस्टर्ड प्लेस होना चाहिए उस ऑफिशियल वेबसाइट पे कि आप कहाँ लोकेटेड हो, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके हाई परफॉर्मेंस वेबसाइट या बोल सकते हैं एक्टिव वेबसाइट पे प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर हो गई बात सबको? ओके, एक मिनट, चलिए। तो हम लोग कहाँ थे? हाई परफॉर्मेंस वेबसाइट पे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, ग्राफिक्स को, वेब डिजाइन प्रॉपर्ली आप यूज कीजिए। आपका जो बेसिकली वेबसाइट होना चाहिए वो मेस नहीं होना चाहिए। मेस का मतलब है कि ऐसा ना हो कि जो पर्सन को जो इंफॉर्मेशन गैदर करना है वो इजीली उसको नहीं मिल पा रहा है। सो कोई मेस नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट पे। प्रॉपर ग्राफिक्स एंड प्रॉपर वेब डिजाइनिंग प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। आपके ऑफिस का एक पिक्चर, फिर या कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, और एक और चीज कि ये जो वेबसाइट हो वो हर जगह पे एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि कुछ पर्टिकुलर एंड्रॉइड यूजर्स यूज कर पा रहे, आईफोन यूजर्स नहीं कर पा रहे, इस तरीके के इसमें बेसिकली ऑथेंटिकेशन और ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज एक्सेसिबल बाय एवरी काइंड ऑफ डिवाइस, हर डिवाइस के थ्रू वो एक्सेसिबल हो। तो ये आपका थर्ड है कि लाइक एक एक्टिव आपके पास वेबसाइट प्रेजेंट होना चाहिए इफ यू आर ऑफरिंग सर्विसेज इन द मार्केट। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? डन। द नेक्स्ट वन इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ क्या मतलब है? बेसिकली कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, दे आर गोइंग टू बिलीव ऑन यू व्हेन दे फर्स्ट, बोल सकते हैं ना, जब वो आपके वेबसाइट पर लैंड करेंगे, या इन शॉर्ट कह सकते हैं जब वो आपकी वेबसाइट को ओपन करेंगे, सो देन दे आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन यू अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी, ठीक है। सो वेबसाइट बहुत इफेक्टिवली, बोल सकते हैं वेबसाइट मस्ट बी इफेक्टिव होना चाहिए। और यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज कह सकते हैं या फिर और बाकी जो भी चीजें हैं, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए कि अगर आप ओपन कर रहे हो वेबसाइट तो बार बार वो क्लोज हो जा रहा है, या कुछ लिमिट्स या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स, एरर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो SEO और वेबसाइट प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया, लाइक यू हैव टू पोस्ट अबाउट या promote your brand on social media as well. Like if you are providing any service, different kind of service, you have to basically promote it on social media, because nowadays more than 60% people are checking new service from by the social media, or they can gather the information through it, ठीक है। and so many people are even basically investing their time in social media. So with this all these things, like social media पे हमें अपने मतलब सर्विस को प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग के लिए क्या क्या तरीके यूज करना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक्स वी हैव टू यूज इन एडवर्टाइजिंग में क्या होना चाहिए, हमें पब्लिकेशंस की हेल्प लेनी चाहिए, सोशल मीडिया, फिर आपके बोल सकते हैं सर्विस इंडस्ट्रीज के वेबसाइट्स, पब्लिकेशंस, इन सब में आप एडवर्टाइज कीजिए। कुछ अलग अलग वेबसाइट्स पे भी आप एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो अपनी कंपनी का। उसके अलावा कुछ कुकी बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए, कि अगर आप कोई भी चीज, कुकी बेस्ड टेक्नोलॉजी का क्या यूटिलाइजेशन है उसको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे आप लोगों को तो खैर ये नॉलेज होगा, लेकिन अगर कभी भी आप कुकी किसी का भी एक्सेप्ट करते हो किसी भी वेबसाइट का, देन वॉट एवर यू आर सर्चिंग ना, दे आर एबल टू ब्राउज इट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर, तो आप लोगों को पता होगा जैसे अमेजोन कई बार हम लोग ओपन करते हैं तो अमेजोन में जो सर्च करेंगे ना वो हमारे फेसबुक पे आता है, वो तो क्योंकि हमारा ईमेल आईडी लिंक होता है दोनों जगह पे, तो ये चीज होता है। बट कुकीज ये चीज फाइंड आउट करता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है, व्हाट यू आर फाउंडिंग, और समथिंग रिलेटेड विद द ऑथेंटिकेशन एज वेल, ठीक है। कि अगर आप वेबसाइट को यूज कर रहे हो, बहुत सारी जगह पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते हो डॉक्यूमेंट्स को, सो यहाँ पर वही चीज है कि कुछ कुकीज टेक्नोलॉजी वगैरह आप यूज कीजिए। सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए अपनी वेबसाइट में, सेफ ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो, अगर कुछ ऐसा है, प्री बुकिंग सिस्टम इज देयर, तो ऐसे केस में सेफ्टी ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल हो। उसके अलावा आप रेफरल सर्विस मार्केटिंग, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट के साथ या एक सर्विस के साथ एक एडिशनल सर्विसेज
प्रोवाइड करो, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए एडिशनल सर्विसेज, एक सर्विस के साथ एक सर्विस फ्री। जैसे अभी तानसेन है, दैट इज अ इंस्टीट्यूट विच इज बेसिकली फॉर म्यूजिक। तो म्यूजिक में दे आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी लाइक, एक अगर आप इफ यू आर गोइंग टू learn classical singing, they are also going to give you classes of guitar. So in short we can say like if your referrals of additional services आप क्या दे रहे हो एक सर्विस के साथ दूसरा सर्विस, तो ये सारी टेक्निक स्ट्रैटेजी हमें यूज करना है सर्विस के लिए। समझ आया? सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट यूज कर सकते हैं, तो ये सारे तरीके और स्ट्रैटेजीज हो जाएंगे। ठीक है, आई गेस दिस इज मोर देन एनफ। उसके अलावा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सर्विस कस्टमर बिहेवियर, ब्रिंग आउट इट्स इम्पोर्टेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर बिहेवियर एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तुम लोगों को मैंने ये शायद करवा रखा होगा पहले, नहीं किया है तो लिख लो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझ आ गया ना, सर्विस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जैसे वी हैव टू एजुकेट द कस्टमर, वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, एक्टिव वेबसाइट, सोशल मीडिया, मार्केटिंग रिसर्च, नीश मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉट एज सच पॉसिबल इन द सर्विस, बट वी कैन इन्फ्लुएंस द कस्टमर थ्रू प्रोडक्ट के साथ सर्विस को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, लाइक कोर सर्विस को कभी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया ये सब चलो ठीक है, ये तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, who is going to tell me about it, what is the meaning of consumer behavior? बोलिए मैम। ये एक एक्टिविटी है जहाँ मार्केटर जानने की कोशिश करता है कि कंज्यूमर का क्या नीड है, एक्सपेक्टेशन है, या फिर कंज्यूमर कैसे बिहेव कर रहा है परचेजिंग को लेके। Exactly, it is something related with the understanding that how consumer are purchasing the product, what is the motivation behind it, how what kind of response they have for the product, response कैसा है न्यू प्रोडक्ट के लिए, ओल्ड प्रोडक्ट के लिए, इमोशनल, मेंटल, बिहेवियरल किस तरीके का है उनका, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को, सर्विस को डिस्पोज, इनकम को कैसे यूज करते हैं। तो ये सारे की सारी चीजें हम कंज्यूमर बिहेवियर में समझते हैं। तो कह सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कंज्यूमर आर परचेजिंग द प्रोडक्ट, हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर इनकम, what is the response of their what kind of response they have for the new products or the existing products, what kind of मतलब कैसा है कितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं परचेजिंग में। लाइक एक होते हैं पर्सन जो हाईली इन्वॉल्व होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं लो इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट। तो इन सब चीजों को समझने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग द कंज्यूमर बिहेवियर कंसेप्ट। सो कंज्यूमर बिहेवियर इज समथिंग रिलेटेड विद द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, किस तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर के बेसिकली बिहेवियर को एनालाइज करना क्यों जरूरी है, व्हाई द एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट, और अंडरस्टैंडिंग और स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट। So first, like to know about these things, we have to study the consumer behavior, what consumer think and how they feel about the various alternatives regarding to the products, brands or services. Like what kind of thinking they have about the brand. Like example के लिए, if we are thinking the classmate notebook, like our thinking is कि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका पेज अच्छा है, क्लियर पेज है ना, स्टेटस के लिए बेटर है, सो वी कैन थिंक अबाउट इट लाइक दिस। ठीक है, अगर हम सर्विसेज को देखें या फिर हम स्कूल्स को देखें, कॉलेजेस को देखें, या फिर आपके सबसे अच्छा आप एग्जांपल ले सकते हो जियो और एयरटेल का कम्युनिकेशन सेक्टर को अगर हम देखें, सो अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस के लिए हमारा अलग अलग थिंकिंग और परसेप्शन है। सो इन शॉर्ट वी कैन से लाइक व्हाट, क्या कंज्यूमर का सोच है, थिंकिंग क्या है उनका, और वो अल्टरनेटिव्स को लेकर और अलग अलग ब्रांड्स को लेकर क्या सोच रखते हैं। तो ये जानने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना जरूरी है।
what influences the consumer, like what are the various factors, like social factor कैसे affect करता है, demographic बोल सकते हैं फैक्टर कैसे affect करता है, कल्चरल फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है कंज्यूमर को बिहेवियर को, और क्या क्या अदर फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं इन पॉजिटिव एंड इन द निगेटिव वे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, इन्फ्लुएंस किस तरीके से हो रहा है कंज्यूमर का बिहेवियर, इसको समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी है. उसके अलावा कंज्यूमर जो है वो किस तरीके का बिहेव करता है एट द टाइम ऑफ शॉपिंग द प्रोडक्ट, यानी जब वो प्रोडक्ट को खरीदने के समय जाता है तो वो किस तरीके का उसका बिहेवियर है. और एक और चीज कि कंज्यूमर महंगे प्रोडक्ट में कैसा बिहेव करता है खरीदने के लिए और सस्ते प्रोडक्ट के लिए कैसा करता है. जैसे अगर महंगे प्रोडक्ट्स है ना तो कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होता है और बार बार वो उसको एनालाइज करता है, एमआर मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है और कई बार कोटेशन भी ले लेता है. लेकिन वही अगर स्मॉल प्रोडक्ट और नीड बेस्ड प्रोडक्ट या सर्विस लेना है, जैसे हॉस्पिटल नीड बेस्ड है ना, इमरजेंसी केसेस है, तो ऐसे सिचुएशन में हाउ द कंज्यूमर्स आर रिएक्टिंग, ठीक है, प्राइस मैटर्स और नॉट, प्राइस उनके लिए मैटर करता है या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके मिलेगा. और कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कैसे होता है ओकेजन के टाइम पे, पर्टिकुलरली उनकी क्या सोच है. तो ये सारी चीजें को कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करके हमें पता लगता है. अब कुछ टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हैं जिसको मैंने याद करने का तरीका आप लोग को करवाया था क्लास में, VCDH. VCDH मतलब V से वैरायटी सीकिंग कंज्यूमर बिहेवियर, C से कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, ठीक है, D से डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर और S से हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर. सो VCDH मतलब ये टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है जहां पर कंज्यूमर का बिहेवियर वैरी करता है एक टाइम या अलग अलग टाइप के बिहेवियर्स हैं, ठीक है. कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में जो कंज्यूमर होते हैं ना वो हाईली इन्वॉल्व होते हैं और एक और चीज वो ज्यादातर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है. हाई रिसर्च करेंगे, हाई इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे उनको कभी कार खरीदना है, घर खरीदना है, या फिर अगर सर्विस सेक्टर में लिया जाए तो हम जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म सर्विस लेना है, कॉलेज में लेंगे एडमिशन तो MBA करें 2 साल, BBA करें 3 साल, लाइक दिस. तो यहाँ पर वी आर बेसिकली बिहेव इन अ कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का मतलब यही होता है जहां पर बिहेवियर में कंज्यूमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है. कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ जटिल की बात हो रही है, जटिल, ठीक है, जो चीज डिफिकल्ट हो समझना, एनालाइज करना. तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा होगा कि वो इतना ज्यादा रिसर्च करेगा ताकि कोई मिस्टेक उनसे ना हो, ठीक है. हाई रिसर्च करेगा, हाईली इन्वॉल्व रहेगा, प्रोडक्ट को बार बार सर्च करेगा, एनालाइज करेगा और उसके बाद जाके फाइनली प्रोडक्ट या सर्विस को अडॉप्ट करेगा यानी खरीदेगा. तो ये होता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर. सेकेंड होता है आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर. अच्छा हाँ, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में कंज्यूमर को बहुत ज्यादा हाई नॉलेज होता है प्रोडक्ट के बारे में, मतलब पहले से भी उसको नॉलेज है, लेकिन चूंकि वो महंगा पैसा, मतलब ज्यादा पैसा लगा रहा है, महंगा प्रोडक्ट खरीद रहा है, सर्विस ले रहा है, लॉन्ग टर्म सर्विस ले रहा है, इसीलिए दे आर बिहेविंग लाइक दिस, ठीक है. डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर में दे हैव नॉलेज अबाउट द डिफरेंट ब्रांड बट नॉट द डीप नॉलेज, like in the case of the देखो V, C, D and H, ठीक है. So V से हो गया वैरायटी सीकिंग, C से हो गया कॉम्प्लेक्स, D से हो गया डिसोनेंस और S से हो गया हैबिचुअल, ठीक है. तो यहाँ पर आपका सबसे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स करवा दिया. अब डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर में क्या होगा कि कंज्यूमर जो है उसको ब्रांड का नॉलेज होगा लेकिन वो ब्रांड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको डीप नॉलेज नहीं है. किसको? कंज्यूमर को. अरे बात समझ में, यहां तक समझ में आया सबको? अब वो क्या करेगा कि वो हाईली डिपेंडेंट होगा पर्सनल पे यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे, वो ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाएगा प्रोडक्ट को, ठीक है. और हो सकता है कि डिसोनेंस रिड्यूसिंग में वो बेसिकली कन्विंस होकर के प्रोडक्ट खरीदे, यानी कि जब उसको पर्सनल जो है वो कन्विंस करेंगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कन्विंस करेंगे, एश्योर करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट या सर्विस को लीजिए, देन आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विस. तो उसको कहते हैं डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। So habitual buying behavior is something here the consumer are not going to analyze any, मतलब यहाँ पर बहुत बेसिक उनके नीड है जिनको उनको हमेशा लेना है, यूज करना है, ठीक है। जैसे उनको अगर एक नमक का पैकेट लेना है तो उसके लिए वो पूरा रिसर्च थोड़ी करेंगे, वो तो एक नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। तो हैबिचुअल बायर में कंज्यूमर जो है वो बहुत कम इन्वॉल्व होगा प्रोडक्ट को खरीदने में, और इन दोनों में हाईली इन्वॉल्व रहेगा, कॉम्प्लेक्स में भी और डिसोनेंस में भी, दोनों में हाईली इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन हैबिचुअल में कंज्यूमर कम इन्वॉल्व होगा प्रोडक्ट को या सर्विस को लेने में, क्योंकि यहाँ पर उनको डेली बेस्ड या इमरजेंसी बेस्ड सर्विस और प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है। अब जैसे अभी कोविड के टाइम पे पीपल जस्ट want to take the oxygen cylinder and all, so in that situation, in that case, the people are not thinking about that from where they are getting it, but they just need it at that time, right? So this they are not so much involved, but जो भी उनको मिल रहा है बस like that. So need based और emergency services में, ठीक है, ऐसे situation में कह सकते हैं हम कि the person is not highly involved but they want to take the service, ठीक है। Next one is the variety seeking behavior. तो variety seeking behavior is something like the people are not able to stick to a particular brand, यानी वो एक ब्रांड पे टिके नहीं रह सकते। क्लियर हो गई बात? They don't want to stick with the same brand. अगर जैसे एग्जांपल में the people who want to eat the biscuits, maybe first they purchase the hide and seek, the second time they are going to purchase Oreo. Why? The question is that why? Because these people are the experimental people, these people are the curious people, they always want to try something new. तो ऐसे सिचुएशन में वैरायटी सीकर्स जो होते हैं वो एक सर्विस पे कभी टिकेंगे नहीं। दे विल फर्स्ट लाइक अगर कम्युनिकेशन की बात करते पहले जियो का सिम ले लिया, फिर एयरटेल ले लिया, फिर अब तो खैर दो ही है ही। तो लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल दे डोंट एबल टू स्टिक विद द सेम सर्विस फॉर द लॉन्ग टाइम, बट दे आर गोइंग टू बेसिकली चेंज इट आफ्टर सम टाइम। और लेकिन ये चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि जो चेंज करने का कॉस्ट है वो ज्यादा महंगा नहीं है। लाइक अगर कोई पर्सन जो है, अगर मान लो कि एक सर्विस ले रहा है जियो का और उसने मूव कर लिया एयरटेल, तो यहाँ पर इसका भी प्लान और इसका प्लान लगभग सिमिलर कॉस्ट का है, ज्यादा एक्सेसिव डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पर्सन कभी एक पर स्टिक नहीं रहेगा, वो अलग अलग सर्विस जो है वो बार बार अलग अलग ब्रांड से लेगा, डिराइव करेगा। आई बात समझ में? तो ये कहते हैं वैरायटी सीकिंग। और ऐसे सिचुएशन में वैरायटी सीकिंग में भी पर्सन हाईली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ एक सिचुएशन आया कि हाईली इन्वॉल्व किसमें होगा? कॉम्प्लेक्स में और डिसोनेंस में। और हैबिचुअल और वैरायटी सीकिंग में वो बेसिकली ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपके हैबिचुअल नीड बेस्ड है और वैरायटी सीकिंग में ना ज्यादातर सिमिलर टाइप ऑफ ब्रांड इक्विटी से हम सर्विस को लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया? ये चारों टाइप समझ में आ गया ना? ओके। यहाँ से पहले वाले से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है प्रोडक्ट से या सर्विस से, तो दूसरे को तुरंत मूव कर जाएगा, दूसरे सेटिस्फाइड पीस, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंकिंग द वैरायटी सीकर्स हैव। सो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है क्यों इंपॉर्टेंट है? एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, फैक्टर्स को समझने के लिए, कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट कब खरीदना है, इन सब चीजों को समझने के लिए आपके कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद वी आर एबल टू मेक द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, या वी कैन ऑफर द प्रोडक्ट एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू दैट, वी कैन इंक्रीज द सेल्स ऑफ द सर्विस लाइक दिस, ठीक है। उसके अलावा हम जो है ना, मतलब बोल सकते हैं ना, लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट या सर्विस को लाने के लिए इन सब चीजों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर को समझना। आई थिंक इतना काफी है। यस तोशी? के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने के लिए, प्राइस इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, एसटीपी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी है। टू अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिफाइड प्रेफरेंसेस, इसके लिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी है। टू अंडरस्टैंडिंग द रोल्स ऑफ द प्लेड बाय द कंज्यूमर्स, उसके लिए आपका जरूरी है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर डिमांड के लिए जरूरी है। समझ में आ गया तोशी?
यस मैम, तो ये सब तो नहीं लिखना होगा इसमें ना? लिखना है, लिखना चाहते हो? डिफरेंशिएट गुड्स एंड सर्विसेज, एंड आई गेस ये आप लोग कर सकते हो, डिफरेंशिएट करना गुड्स एंड सर्विसेज को। यस मैम। डिफरेंशिएट गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या डिफरेंसेस है? तो नेचर याद ही होगा, टैंजिबल, इंटैंजिबल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं है, गुड्स में पॉसिबल है, सर्विसेज में पॉसिबल नहीं है। सेपरेबिलिटी, गुड्स सेपरेबल है, सर्विस सेपरेबल नहीं है। स्टोरेज, गुड्स को स्टोर कर सकते हैं, सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। पेरिशेबल, सारे गुड्स पेरिशेबल नहीं होते हैं, लेकिन आपके जो सर्विसेज होते हैं वो क्या होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, उसको आप ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, मतलब आप उसको रख ही नहीं सकते, स्टोर ही नहीं कर सकते। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, गुड्स में और प्रोवाइडर में, जो गुड्स प्रोवाइड करा है और उसको गैप दे सकते हो सर, एक किसी ने मार्कर बनाया और उसको खरीदने के बीच में गैप हो सकता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने में और सर्विस कंज्यूम करने में गैप पॉसिबल नहीं। क्लियर? डन? तो गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंसेस पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। जितने भी फैक्टर्स थे, कॉर्पोरेट, यूथ, एम्प्लॉयमेंट, डेंक, ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट इन क्वेश्चन नंबर 1। एंड अभी जो है ना 61% के अराउंड जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन है सर्विस का, ठीक है। फॉर ग्लोबलाइजेशन का इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, सर्विस सेक्टर पे, और कैसे सर्विस सेक्टर जो बूमिंग स्टेज पे पहुंचा, इसके बारे में आपको नोट्स लिखना है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ सर्विसेज, आई गेस पता है, स्कोप करवा दिया मैंने। कैरेक्टरिस्टिक वही आपका होगा VIIP, ठीक है। वेरिएबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, इंटैंजिबिलिटी एंड पेरिशेबिलिटी। STP मैंने करवा दिया आप लोगों को। गैप्स मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी सबको पता है, कितने तरीके के गैप है? 5। पहला नॉलेज गैप, सेकंड पॉलिसीज गैप, थर्ड डिलीवरी गैप, फोर्थ कम्युनिकेशन गैप, एंड फिफ्थ वन इज कस्टमर गैप, ठीक है। प्रोवाइडर गैप का नोट्स मैं आप लोगों को एक बार फिर से प्रोवाइड कर दूंगी, प्रोवाइडर गैप का एक बार नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइडर गैप में वही होगा जो कंज्यूमर के परसेप्शन को नहीं समझ पाना मैनेजमेंट के थ्रू, कस्टमर गैप और नॉलेज गैप का बेसिकली दैट इज द पार्ट। Next question is explain the factors and approaches used for designing the service delivery system. तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लो कि what are the basically factors जो हैं that is responsible for, मतलब कैसे हम सर्विस को डिलीवर हम कैसे करें, उसको हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक द आउटलेट दैट हाउ वी कैन प्रोवाइड द सर्विस टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इसके कुछ तरीके हैं। पहला है, फर्स्ट वन इज कस्टमर कॉन्टैक्ट, like how much contact will the customer have with the service, ठीक है, यानी कितना contact सर्विस सेक्टर में वो करता है। what will be the nature that contact be, मतलब कस्टमर कॉन्टैक्ट कैसा है, कस्टमर के साथ आपका जान पहचान कैसा है, फर्स्ट। सेकेंड वन इज सर्विस मिक्स, यानी कि सर्विस मिक्स इज रिलेटेड विद द 7 P's। लाइक एग्जांपल में वही है कि एक लोकल ऑथोरिटी स्पोर्ट्स है एंड लेजर सर्विस जो है वो अलग अलग सर्विस लाइन प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन, या प्रोडक्ट लाइन पता है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना विद इन वन कंपनी। वही सेम चीज है कि अलग अलग टाइप की सर्विसेज कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर्विस मिक्स आपका किस तरीके का है, सर्विस प्रोडक्ट आपका कैसा है, सर्विस का प्राइस कैसा है, प्लेस, प्रमोशन, 7 P's को आप कैसे यूज कर रहे हो ये। थर्ड में होगा लोकेशन ऑफ सर्विस कंजप्शन, यानी कि सर्विस को कंज्यूम कहाँ किया जा रहा है, यानी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ योर कंपनी वेयर द सर्विस इज प्रोवाइडेड, ठीक है। कैसी फैसिलिटी है वहां पर, सिंगल फैसिलिटी है, जैसे अगर कोई पर्सन टिकट लेने जाता है बाहर रेलवे स्टेशन पे, तो लाइक 4-5 टिकट काउंटर्स आर देयर, द लोकेशन इज द मिडल एरिया और समथिंग लाइक ओवर क्राउडेड एरिया। So what is the location of the service, like you are taking the service after going to that place, or the service provider is contacting you or delivering that service in your home. So like this kind of concept, that what is the location of the service consumption, कहाँ पर सर्विस को कंज्यूम किया जा रहा है। उसके बाद डिजाइन ऑफ सर्विस फैसिलिटीज एंड एसेसरीज, यानी कि आप जहां सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसको डिजाइन हम कैसे करेंगे, लाइक हम लेआउट कैसे बनाएंगे। अगर हम सर्विस प्रोवाइड करें, अगर कोई कॉलेज है तो वहां पर फर्निशिंग यानी कि टेबल, चेयर्स एंड ऑल भी इसका
अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कलर कैसे होगा, ये सारी फैसिलिटी को हम ध्यान में रखेंगे। अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो लोगो कैसा डिजाइन करेंगे, व्हीकल यानी फिजिकल एविडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हेडिंग, साइनेज, ब्राउचर्स, ये किस तरीके से हमें डिजाइन करना है वो देखना है। फिर टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करेंगे। यस तोशी, मैम वो डिजाइन वाला पॉइंट आवाज नहीं आ रही बेटा। मैं पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, in design of service facilities and accessories, that how we are, अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो उसके आसपास का एरिया कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट हाउ वी आर बेसिकली डिजाइन द यूनिफॉर्म्स, व्हीकल्स, लोगो कैसा होना चाहिए, पर्सनल कम्युनिकेशन, हेडिंग्स कैसा होना चाहिए, साइनेज कैसा होना चाहिए, all these things we have to basically concern about. Next one is technology. So we are using in service, we are using technology in which extent, like some कुछ ऐसे बैंक वगैरह देख लो, ICICI, they are basically making everything, मतलब हर फैसिलिटी उन्होंने टेक्नोलॉजी पे छोड़ दिया, like you can use the iMobile app for everything, you can visit their internet banking, you can use. So we can say like how you can balance between the technology and the people. Like in the, मैंने बोला ना कि majority of the case में we don't need to interact the banker for any of the thing, but we can use the technology easily, iMobile app, right? So how you are able to use the technology and the personal or people in providing the service, ठीक है, and what kind of technology and how much the people are involved in it. तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे आपके टेक्नोलॉजी पे कि हम सर्विस कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड बना चुके हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है तो कितना एक्सटेंड तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्प्लॉइज, लाइक हाउ मेनी पीपल यू रिक्वायर्ड इन प्रोवाइडिंग द बेसिकली सर्विस टू द कस्टमर, ठीक है। और कस्टमर अगर एम्प्लॉइज हैं भी तो फ्रंट एंड में कितने हैं और बैक एंड में कितने हैं, सो लाइक व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट, सुपरवाइजर्स कितने हैं, क्वालिटी कंट्रोल कितने हैं, ठीक है, कितने स्किल्ड हैं, कितने ट्रेन्ड हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट लाइक दिस, लाइक पीपल कैसे हैं सर्विस जहां प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है आपका, लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा लेयर्स तो नहीं है, आपका फंक्शनल है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है आपका। ऐसा तो नहीं है कि एक एम्प्लॉइज के ऊपर 10-10 सुपीरियर है। ये सारी चीजों को हम ध्यान रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, और साथ साथ में आपका पार्टनरशिप है, आपका कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो वो चीज देखेंगे। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट, यानी कि आपकी सर्विस का कितना डिमांड है और कितना ज्यादा हम डिमांड को फुलफिल कर पा रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से लाइक वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। वी हैव टू एक्नॉलेज अबाउट द डिमांड पैटर्न्स एंड लेवल्स। नेक्स्ट वन इज वर्क शेड्यूल वगैरह बनाना, इसमें आप वर्क शेड्यूल बना सकते हो, रिजर्वेशन सिस्टम देख सकते हो, मतलब ये सारी चीजों में हमें बेसिकली क्या बोल सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट हम ध्यान रख सकते हैं, लोग कितने अवेलेबल हैं डिमांड को फुलफिल करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ प्रोसीजर्स, लाइक व्हाट सिस्टम विल बी प्लेस एंड व्हाट टेक्निक इज यूज्ड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द सर्विस, या फिर बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए स्मूथ प्रोसीजर के लिए आपके पास कितना बोल सकते हैं ना, क्या प्रॉपर क्या प्रोसीजर है। उसके अलावा आप कंट्रोलिंग यानी आप क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी को कैसे मेजर कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये सारे 11-12 जो हैं ये सारे फैक्टर्स हैं, दैट इज बेसिकली these factors which is basically taken consider, we have to consider at the time of service design. Customer contact, पहला पॉइंट हो गया कस्टमर कॉन्टैक्ट, सेकेंड वन इज सर्विस मिक्स, थर्ड वन इज लोकेशन ऑफ सर्विस एंड कंजप्शन। यस तोशी, मैम वो प्रोसीजर वाला एक बार पॉइंट समझा दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही तोशी बेटा, क्या बोल रहे हो मैम? प्रोसीजर वाला एक बार पॉइंट फिर से समझा दीजिए। प्रोसीजर में लिखो, प्रोसीजर में क्या होगा आपका कि सर्विस जो है वो कस्टमाइज प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, स्टैंडर्डाइज है या कस्टमाइज है, यानी सबको सेम सर्विस दिया जा रहा है या फिर हम चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कस्टमर्स। सो व्हाट इज द प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ गिविंग द सर्विस टू द कस्टमर। क्लियर हो गया तोशी? यस मैम। सो
पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो. पहला पॉइंट है कस्टमर कॉन्टैक्ट, सेकेंड पॉइंट इज सर्विस मिक्स, थर्ड पॉइंट इज लोकेशन ऑफ सर्विस कंजप्शन, fourth point is design of service facility and accessories, design of service facilities and accessories, fifth technology, sixth employees, seventh organization structure, eighth information, like how you are providing the information to the consumer. ठीक है, how you are going to store those information, ये सारी चीजें information, demand and supply management. उसके बाद what is the procedure of providing the service and how we can control the service quality. So all these are the basically factors which is we have to take in consideration while designing the service. Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay, so see you all in the next class.